second, please. Yes. Chairman, sir. Chairman, sir. Speaker, sir. I am. Please, 1 second, sir. Please, sir. Chairman, sir, I am objecting to the word permission. That is not the correct word because I am not given permission by anyone. I am leader of opposition. So I'm just objecting to that. I have called your name. Everybody speaks with the permission of the chair. Please. Nobody Because, is above the chair. There was an altercation. Everybody speaks on the permission of the chair. Please speak, sir. 1 second. 1 second, sir. Yes, please speak. Speaker, sir, our President's address was about the path that India has to chart, the direction in which India has to move. Today, on the world stage, the main issue in international affairs is the conflict between China and the United States. This is central. This is central. This is central to our President's address. This is central, as you have seen, to our budget. And all I am saying is I want to make a statement about what happened between China and India and how our Prime Minister reacted to it. Why am I being stopped? Sir, in Ladakh, in eastern Ladakh, there was a conflict. Our soldiers were killed. I requested Honorable LOP to speak. Repeatedly I made a request to speak on the speech of the Honorable President. Now Manyaniya Shri Naresh Uttam Patel ji. Manyaniya Shri Naresh Uttam Patel ji. Manyaniya Shri Naresh Uttam Patel ji. Sir, I made repeated request to speak on the speech of the Honorable President. Manyaniya Shri Naresh Uttam Patel ji. आप बोलना नहीं चाहते हैं, माननीय श्रीमती शताब्दी राय, माननीय श्रीमती शताब्दी राय, माननीय श्रीमती शताब्दी राय, माननीय श्री डीएम खातिर आनंद, माननीय श्री डीएम खातिर आनंद, माननीय श्री जीएम हरीश बालयोगी जी, today on behalf of my party, Telugu Desam, to extend our support to the gracious address delivered by the Honorable President of India. The address presents a confident national roadmap anchored in reform, guided by inclusion, and directed towards the long-term objective of building a strong, self-reliant, and globally competitive India. The vision of Vikasit Bharat 2047 reflects a fundamental shift in governance philosophy from managing short-term outcomes to shaping India's long-term economic strength, institutional capacity and strategic relevance in global economy. With India's potential growth rate approaching 7%, driven by sustained reforms and historical public investment, we are witnessing the emergence of a new development trajectory. Our national
और सदन की कार्यवाही सदन की कार्यवाही एक बार फिर से स्थगित हो गई है। आज सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हुई, इसके बाद 8 मिनट बाद उसे स्थगित करना पड़ा दोपहर 12 बजे तक के लिए। 12 बजे भी सिर्फ 13 मिनट ही सदन की कार्यवाही चल पाई और अब जब दोपहर 2 बजे एक बार फिर से सदन की कार्यवाही शुरू हुई, लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बोलना था राष्ट्रपति के अभिभाषण पर और फिर हंगामा शुरू हुआ और 13 से लेकर 14 मिनट बाद फिर एक बार फिर से सदन की कार्यवाही को यहां पर स्थगित कर दिया गया है। बहरहाल लगातार डोकलाम के मुद्दे पर बोलना चाह रहे हैं राहुल गांधी। कल भी एक मैगजीन को लेकर वो सामने आए थे आर्टिकल लेकर। अब राहुल गांधी को आज भी सदन में बोलने नहीं दिया गया है। लगातार हंगामा वहां पर हुआ, एक तरफ सत्ता पक्ष के सांसद, दूसरी तरफ विपक्ष के तमाम सांसद, और राहुल गांधी अपनी बात पर कल की तरह आज भी अड़े रहे कि उन्हें डोकलाम के इशू पर बोलना है। आज ये नई बात जरूर यहां पर देखने को मिली है कि आज उन्होंने अपने उस आर्टिकल को ऑथेंटिकेट किया है, क्योंकि जब भी इस तरह से किसी आर्टिकल पर किसी सांसद को बोलना होता है तो उसे ऑथेंटिकेट करना होता है। कल भी इसको लेकर सवाल हो रहा था। आज राहुल गांधी ने अपने इस आर्टिकल पर अपने भाषण जब उन्होंने शुरू किया तो शुरुआत में उसे ऑथेंटिकेट करने की उन्होंने यहाँ पर बात रखी और उसे टेबल कर दिया ऑथेंटिकेट करने के साथ ही। और कल वाली बात से ही आज उन्होंने फिर से बोलना शुरू किया और नेशनल सिक्योरिटी को अहम मुद्दा बताते हुए, राष्ट्रीय सुरक्षा को अहम मुद्दा बताते हुए उन्होंने एक बार फिर से डोकलाम में जिस तरह से कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसका जिक्र यहां पर वो करते नजर आए और उनका इतने बोलने पर ही हंगामा शुरू हो गया सदन में और ये हंगामा काफी देर तक वहां पर चलता रहा। आखिरकार 13 मिनट तक की इस गहमा गहमी के बीच सदन की कार्यवाही को दोपहर 3 बजे तक के लिए एक बार फिर से स्थगित यहां पर कर दिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने लोकसभा से, जहां पर राहुल गांधी एक बार फिर से आज बोलने के लिए खड़े हुए थे। राहुल गांधी चीनी घुसपैठ के मामले पर बोलना चाह रहे थे। राहुल गांधी डोकलाम के मुद्दे को उठाना चाह रहे थे, इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का अहम मुद्दा बताते हुए, और इसी को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर तकरार एक बार फिर से देखने को मिली और फिर सदन की कार्यवाही एक बार फिर से हंगामे की वजह से यहां पर स्थगित कर दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने लोकसभा से, जहां पर हंगामा जारी है। इस सब के बीच कल देर रात जिस तरह से ट्रेड डील को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया, उसको लेकर भी खासा हंगामा है। विपक्ष लगातार आक्रामक है, हमलावर है सरकार पर। बड़ी खबर, राहुल गांधी आज भी सदन में नहीं बोल पाए हैं। राहुल गांधी जैसे ही चीन का उन्होंने जिक्र किया, डोकलाम का उन्होंने जिक्र किया, हंगामा हुआ और इसके बाद इस गहमा गहमी के बीच सदन की कार्यवाही को एक बार फिर से दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। कल की तरह आज भी सदन की कार्यवाही यहां पर होती हुई नजर नहीं आ रही है और न ही राहुल गांधी इस मुद्दे पर अपनी बात रख पा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी को यहां पर बोलना है और राहुल गांधी अपनी उसी बात पर अड़े हुए हैं जिसमें वो एक मैगजीन के आर्टिकल को कोट करते हुए सवाल कर रहे हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर सवाल कर रहे हैं। 2020 में गलवान में जो स्थिति बनी थी उसे लेकर वो सदन में राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे को लेकर अपनी बात यहां पर वो रख रहे हैं और यही सवाल सत्ता पक्ष का है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी इस मुद्दे को यहां नहीं बोल सकते और लगातार गहमा गहमी बनी हुई। कल भी दिन भर ये हंगामा लोकसभा में हमने देखा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बोल नहीं पाए थे। आज भी इसी तरह का हंगामा लोकसभा में यहां पर देखने को मिला है। दोपहर 3 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित की गई है।